Hello and welcome to Speak Up India. I am Sunil Jha. Thank you so much for connecting. सबसे पहले तो जो बार बार इंटरप्शन हो रहा है हमारे और आपकी मुलाकात में, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये इंटरप्शन बहुत डिस्टर्ब करता है, शो के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, मेरे इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करता है। आप लोग वेट करते हैं और वेट करते रह जाते हैं, लेकिन उसका रीजन ये है कि माय एंटायर फैमिली वाज down with COVID and I'm still recovering, and post COVID it's not predictable. आप सब जानते हैं कि post COVID में side effects होते हैं, and even if when I want to come on air suddenly something happens, and yesterday was a typical case कि मैं सब कुछ तैयारी करके और मैंने नोटिफाई भी कर दिया, सब कुछ किया, but last minute I was feeling very dizzy because मुझे लगा फिर ऐसा नहीं कि मैं शो करूं और अचानक कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। इसलिए I cannot take chance because the doctors have advised that in case you feel any kind of a stress, please do not do anything that gives you any kind of a mental, physical or any kind of stress. So that's the reason I had to cancel the show yesterday, but I'm sorry for that, but then there was no option, and the fact remains that it disturbs the show, it disturbs the flow, पूरा scheme of things disturb हो जाता है, जो मैं काफी खुद परेशान होता हूँ और बाद में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आई एम हेल्पलेस, कंप्लीटली हेल्पलेस। सो प्लीज अप्रिशिएट दैट फैक्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि जब भी कोई ऐसा प्रेसिंग रीजन होगा तभी मैं ऐसा करूंगा, वरना कोई रीजन नहीं है कि मैं शो ना करूं अगर मैंने अनाउंस कर दिया तो। सो आप जानते हैं कि लगातार हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज 14 तारीख को 1 साल हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए, एंड नो वन नोज एक्चुअली व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत इवन आफ्टर ऑलमोस्ट 1 year of his death. CBI is investigating the case, but we do not know. एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, वहाँ इनवाइट कर रहे हैं, और क्या मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, ये आप लोगों का प्रेरोगेटिव है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ बोलना चाहते हैं, कहाँ पोस्ट लिखना चाहते हैं। ये मेरा राइट नहीं है, ये आप लोगों का राइट है। आप लोगों को जो लगता है आप लोगों को खींचिए। यू आर इंडिपेंडेंट, यू हैव फ्रीडम टू डू दैट. I cannot impose, and I will not impose, because it's entirely up to you to go and speak wherever you want. So don't send me any kind of request. You are absolutely free to choose what you want to do, and I'll have no objection at all. Yes, I do always want that my people should be my people, and people who come on the platform should be exclusively on this platform. That's my personal wish. But then that doesn't mean that I will impose any kind of my thoughts on anybody. So that I will not do. We have been talking about Sushant Singh Rajput almost every day, and we have promised that we'll continue talking about that until 14th. So first request, first come first, please share the video, and not just on Facebook but also on YouTube. When you share, it reaches many more people, and that really helps. So please do share the video, and if you have already subscribed the YouTube channel, very good. If you have not, because a lot of people have not yet subscribed it, please go and subscribe the video, because that gives the easy notification to all of you. A lot of people say they do not get notification. The reason is maybe a Facebook notification doesn't reach. If you subscribe the YouTube channel, you will certainly have the notification in place, and you will know when I am going on air. So having said that, I'm not talking about the subject that we picked up yesterday. Yes, we did pick up, we did prompt a subject yesterday, but we'll talk about that later, because today there's something more important, and a lot of people are writing about it. And I thought that it is better that we come and discuss it, because काफी लोग disappointed हैं, family is disappointed, fans are disappointed, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा ऑर्डर क्यों आया। फैमिली ने ट्वीट भी किया saying that it's quite disappointing. So we'll talk about that in detail, and also see what next, क्या हो सकता है, क्या न्याय है। यही हम आज शो कर रहे हैं, क्या है न्याय। अब न्याय एक ऐसा शब्द है, यानी जस्टिस, जिसके इंटरप्रिटेशंस, एवरीवन विल इंटरप्रेट जस्टिस इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट्स एग्जैक्टली द ब्यूटी ऑफ द वर्ड न्याय। जो आपको जस्टिस लगता है, हो सकता है किसी और को इनजस्टिस लगे, जो आपको इनजस्टिस लगता है, हो सकता है किसी और को जस्टिस लगे। द फैक्ट इज कि इस वक्त जिस न्याय की बात कर रहे हैं वो कोई जस्टिस नहीं है, ये फिल्म है। एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है, टाइटल है न्याय द जस्टिस, और कहा जा रहा है कि ये सुशांत सिंह राजपूत सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पे
या उसके डेथ पे, उसके अराउंड सराउंडिंग जो जो इंसिडेंट हुए उस पर बनाई गई ये फिल्म है। और इसको लेकर काफी दिन से ये बात कही जा रही थी कि ये फिल्म सुशांत के लाइफ पे है, इसलिए विदाउट द फैमिली परमिशन नहीं होना चाहिए। और इसी में सुशांत के फादर जो के सिंह हैं, आप सब जानते हैं, उन्होंने पिटीशन डाला था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिस पर काफी दिन से हियरिंग चल रही थी और आज जाकर उसमें ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें तो हमें पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हाई कोर्ट ने डिटेल में कही हैं। आई एम हियर टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट द फैक्ट इज दैट दिस वर्ड न्याय is actually very disappointing in the sense जब नहीं मिलता है तो लोग परेशान होते हैं। आज का शो स्पीकअप इंडिया है, आज का शो FYI+ नहीं है। आपने गौर किया होगा, मैंने कहा है स्पीकअप इंडिया। उसका रीजन ये है कि while the platform and the people who are providing me the platform, they are making an effort to correct it, but what I understand is that all of you, those who have got laptops or computer at your place, you can connect. So मोबाइल और iPads के साथ शायद आप कनेक्ट ना कर पाए। आई विल शेयर द लिंक, और अगर लिंक कनेक्ट हो जाते हैं तो वेरी गुड, बट कम से कम लैपटॉप और कंप्यूटर जिनके पास भी हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कम एंड स्पीक। So only all of you can view wherever you want on mobile and iPads or anywhere. But those who want to connect can still connect using their computer, which is the desktop or laptop. So this is one option that's available with us. That link is working on laptop and computer. So those who want to talk about it after the narration can certainly do that. If they are using a laptop or a computer. So that's the second clarification which I wanted to make. Let's start the show. न्याय को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, और वो ऑर्डर ये था कि जो पिटीशन सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने किया था उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। अब ये अपने आप में सेटबैक है, क्योंकि बहुत सारी मीडिया हाउस कह रहे हैं दिस इज अ सेटबैक टू सुशांत सिंह राजपूत फैमिली, बिकॉज उनका रिक्वेस्ट था कि इस फिल्म को रोका जाए, यानी न्याय द जस्टिस पर स्टे दिया जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सो इट्स अ ह्यूज सेटबैक। ये उनका इंटरप्रिटेशन है, यानी उन मीडिया हाउसेस का इंटरप्रिटेशन। मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई लीगल चीज में कोई इतनी जल्दी किसी चीज को सेटबैक मान लेना चाहिए, या किसी चीज को इतनी जल्दी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर विक्ट्री मान लेना चाहिए। लीगल प्रोसेस इंडिया में, द वे आवर लीगल सिस्टम इज इवॉल्व्ड, गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। व्हेन देयर आर समथिंग गोज राइट दैट इन फेवर ऑफ यू, जो आप चाहते हैं वैसा होता है, तब भी एक दूसरा साइड होता है जिसके पास ऑप्शन होता है, और वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है ताकि फेयर हो सब कुछ। अब कई बार ऐसा होता है जब आपके मन मुताबिक चीजें होती हैं, और तब जब दूसरा पार्टी करता है उसको चैलेंज, तो आपको लगता है ये गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो ऑर्डर आ गया था, फिर ये चैलेंज क्यों रहा है। उसी तरह जब न्याय जैसा कोई ऑर्डर आता है, न्याय जैसी फिल्म पर कोई ऑर्डर आता है और उसमें आप डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, तो क्या इज दिस द एंड ऑफ द वर्ल्ड? मे बी नॉट। Why? We'll explain that later. First, let's talk about क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। तो दिल्ली हाईकोर्ट refused to stay the release of several films. न्याय द जस्टिस इज फर्स्ट फिल्म, बट इसके अलावा के सिंह ने अपने पिटीशन में कई सारी चीजें बोली थी। उन्होंने कहा था कि जितनी भी ऐसी फिल्में बन रही हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पर हैं, वो रिलीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि फैमिली ने किसी को भी परमिट नहीं किया है टू हैव द राइट्स। यानी सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ के आसपास जो भी फिल्में बन रही हैं, उसको अगर आप बनाना है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी के तौर पे होगी या उसके लाइफ पर होगी, आपको फैमिली से परमिशन लेनी चाहिए। अगर आपने फैमिली से परमिशन नहीं लिया है तो फिर आप फिल्म नहीं बना सकते। हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं माना है, सही नहीं माना। उनके मुताबिक ये स्टे नहीं दिया जा सकता, यानी ये ब्लैंकेट परमिशन टू सुशांत सिंह राजपूत फैमिली कैन नॉट बी गिवन कि अगर कोई भी शख्स मूवी बना रहा है तो उसको रिटन परमिशन या क्लियरेंस फैमिली से लेना होगा। ऐसा हाईकोर्ट को नहीं लगता। हाईकोर्ट को लगता है इसकी जरूरत नहीं। मैंने फिर कहा, आपको बताया कि जरूरी नहीं है जो हाईकोर्ट ने कहा वो नेगेटिव हो। हाउ विल एक्सप्लेन दैट लेटर। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जबकि फैमिली का ये मानना था कि ये जो पूरी फिल्म बन रही है न्याय द जस्टिस, और मैं पढ़ के बताऊंगा भी कि क्या ट्वीट किया है, क्यों ये कहा जा रहा है, वो पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ और डेथ से रिलेटेड है। और ऐसे में उस चीजों के बारे में बात करना बगैर फैमिली के परमिशन के गलत होगा।
कल ये फिल्म रिलीज होने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये ऑर्डर आज इसलिए आया है क्योंकि कल ये फिल्म रिलीज होने वाली है और अब ये फिल्म कल रिलीज होगी, अनलेस फैमिली कोई और एक्शन लेती है। क्या ले सकती है फैमिली वो एक्शन, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है नहीं भी ले, हो सकता है ले भी, बट ये फिल्म अब फिलहाल हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद ये कल रिलीज को तैयार है। जो ऑर्डर में कहा गया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ग्राउंड को और ये लाइन को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि इस लाइन का इंटरप्रिटेशन आगे बहुत सारे केसेस में होगा। यानी ये एक लाइन ऐसी है जो अगर एक्सेप्ट कर ली गई तो फिर बहुत सारे केसेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज वो लोग जो इस फिल्म को बनाना चाहते हैं और जिनके खिलाफ के सिंह ने पिटीशन डाला है, हो सकता है कल उनको ही इस ऑर्डर के कारण नुकसान हो। इसीलिए एक लाइन ऐसी है हाईकोर्ट ने ऑर्डर में लिखी है जिसको लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि दिस वन लाइन इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग दिस ऑर्डर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब इस लाइन में कहा गया है कि पोस्टमस प्रिवेसी राइट इज नॉट परमिसिबल, यानी किसी के डेथ के बाद, किसी भी शख्स के डेथ के बाद आपको प्रिवेसी राइट नहीं मिल सकता, उसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। यानी सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ को लेकर, उसके लाइफ में क्या कुछ हुआ, अगर वो प्राइवेट रखना चाहते हैं और आपकी प्ली ये है कि क्योंकि ये फिल्म आएगी तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, वो भी तब ये जब केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही नहीं होगा। हाईकोर्ट का मानना है जब किसी शख्स की मौत हो जाए उसके बाद प्रिवेसी राइट का परमिशन नहीं दिया जा सकता। मेरे हिसाब से ये बहुत कंट्रोवर्शियल एक लाइन है और ऑर्डर है, क्योंकि अगर इस लॉजिक से जाएंगे कि किसी के प्रिवेसी, किसी के डेथ के बाद किसी की प्रिवेसी डिस्टर्ब नहीं होती है या उसको प्रिवेसी राइट के नाम पर आप कोई परमिशन नहीं दे सकते, तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं, बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इनकी जब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर किसी की मौत हो जाए और आप कोई शख्स फिल्म बनाना चाहे तो क्या कोई भी कोर्ट परमिशन देगी? क्यों? क्योंकि फैमिली उस वक्त बोलेगी कि हमारे हस्बैंड या हमारे बेटे या हमारे फादर या हमारे रिलेटिव या हमारे फैमिली मेंबर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है। प्राइवेसी का राइट मेरे मुताबिक, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, बट अकॉर्डिंग टू मी प्राइवेसी का राइट जितना जिंदा यानी किसी के रहते हुए जितना है, उतना ही उसके जाने के बाद भी है। यानी अगर कोई शख्स जिंदा है और उसके प्राइवेसी के राइट्स हैं, तो फिर उस शख्स के जाने के बाद भी उसके लाइफ के प्राइवेसी के राइट्स हैं, वरना तो किसी की भी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, किसी के भी परसेप्शन की या इमेज की आप कहीं पर भी बखिया उधेड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर ये बात कह दी कि एक बार कोई मर जाए उसके बाद उसके प्राइवेसी राइट की परमिशन नहीं दी जा सकती, अगर ये लाइन एक्सेप्ट हो गई, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज रिटन exactly in order because I only have the parts of it, details of it. But if it is part of the judgment, which the report claims, PTI report claims that it is part of the judgment, अगर ये part of the judgment है, then this is a very controversial line because अगर ये लाइन एक्सेप्ट हो गई तो फिर आगे बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोग बहुत सारी फिल्में बनाना चाहेंगे उन कंट्रोवर्शियल लोगों को लेकर जिनकी फिल्म देखना या जिनके बारे में जानने में लोगों को इंटरेस्ट होगा। अब तक कई सारी फिल्में इसलिए नहीं बनी क्योंकि फैमिली ने कहा ये हमारे प्राइवेसी राइट को डिस्टर्ब करता है। उस ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें नहीं हुई। लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पर अगर न्याय बन रही है, न्याय द जस्टिस बन रही है और हाईकोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये है कि पोस्टमस प्राइवेसी राइट इज नॉट परमिसिबल, यानी किसी के मरने के बाद प्राइवेसी राइट की गारंटी नहीं दी जा सकती, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये अपहोल्ड करने वाली बात है। ये सर्टेनली इट शैल बी चैलेंज बिफोर अ हायर कोर्ट बिकॉज इस लाइन को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट कर देगा और भी केसेस में ऐसा होगा। और बहुत सारे लोग जो बड़े लोग हैं या जो कंट्रोवर्शियल फिगर हैं या पॉलिटिशियन है, सबके राइट या इवन केसेस ऑफ क्राइम से, जैसे निर्भया का केस है, निर्भया या कोई भी रेप विक्टिम है या मर्डर विक्टिम है, उसके लाइफ को लेकर आप सब चीजें नहीं लिख सकते क्योंकि वो परमिसिबल नहीं है। अगर पोस्टमस प्राइवेसी का राइट नहीं दे सकते तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये एक लाइन ऐसा है जो मुझे लगता है अगर ये है तो फिर ये
प्योर केस, ये प्योर ग्राउंड ऑफ चैलेंजिंग द ऑर्डर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट है. अब नाउ दिस इज फॉर सुशांत सिंह राजपूत लॉयर्स टू सी और एनी अदर लॉयर टू इंटरप्रेट कि इस ऑर्डर का एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होता है. बिकॉज आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम अ जर्नलिस्ट हु हैज covered or done legal reporting. That's all right, but I am not a lawyer per se, so I would not know exact interpretation of it. But according to me, common sense and journalistic sense says, or my experience from the legal field, whatever number of years I spent there, says that this is one line which cannot be acceptable legally. So it is bound to be challenged before the Supreme Court. This is what I think. The court did not say just this. Court has said many more things. The court said that it found merit in the submission of producers and directors that if information of events which are occurred is already in public domain, one cannot plead any violation of right to privacy on a movie inspired from such events. यानी हाई कोर्ट का कहना है कि अगर इस इंसिडेंट के बारे में या किसी भी इंसिडेंट के बारे में पब्लिक नॉलेज है और वाइड पब्लिसिटी हो गई है अगर, तो फिर उसके बारे में प्राइवेसी का ग्राउंड कैसे लिया जा सकता है. मतलब अगर सब कुछ पता ही है, सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ के बारे में आपको सब पता है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर फिल्म बन जाएगी. ये हाई कोर्ट का कहना है. अगर फैक्ट्स सामने हैं, चीजें सामने हैं, लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, फिर प्राइवेसी का ग्राउंड कैसे. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद नहीं पता हो, ये भी हो सकता है. तो फिर फैमिली का कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग या पब्लिक में, ये जर्नलिस्ट, लॉयर्स या पब्लिक फैंस, वो सिर्फ अंदाजा लगाकर बहुत सारी चीजें क्लेम कर रहे हैं. दरअसल फैक्ट कुछ और हो सकता है. और ये फिल्म जो क्लेम करता है, ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पे बनाया जा रहा है या बन रही है, इसमें कुछ फैक्ट्स रिसर्च के बेसिस पे अलग हो सकते हैं जो हमारे और आपके नॉलेज में, और वो सर्टेनली प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेगा. दिस इज व्हाट द फैमिली फील्स. नाउ द मूवीज, मैंने कहा ना केवल न्याय द जस्टिस नहीं है, और भी मूवीज हैं. न्याय द जस्टिस एक है, सुसाइड और मर्डर दूसरी है, अ स्टार वाज लॉस्ट तीसरी है, शशांक चौथी है, और एक और फिल्म है जो अननेम्ड है. यानी 5 फिल्में हैं और पांचों फिल्म को लेकर के सिंह ने इस केस को दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया था. और अब इन पांचों में अगर ये चैलेंज नहीं हुआ बिफोर हायर कोर्ट, तो फिर ये पांचों ही फिल्में बनने से अब फैमिली नहीं रोक सकती. एक ही तरीका है कि आप हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और वहां से ऑर्डर लीजिए. एक और ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट से जाने से पहले आप हाई कोर्ट में भी, बिकॉज ये सिंगल जज का ऑर्डर है, आप डिवीजन बेंच यानी 2 जज बेंच के सामने भी इसको चैलेंज कर सकते हैं, विच इज अ हायर बेंच. सिंगल जज के ऑर्डर को आप डिवीजन बेंच के सामने उसी हाई कोर्ट में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं. तो फैमिली हैज अ राइट टू चैलेंज दिस ऑर्डर, बिकॉज ये ऑर्डर जो है सिर्फ न्याय द जस्टिस से रिलेटेड नहीं है, इन पांचों फिल्मों से रिलेटेड है. न्याय, सुसाइड और मर्डर, स्टार वाज लॉस्ट, शशांक और एक अननेम्ड फिल्म. Justice Sanjeev Narula, he gave the orders today. He said he dismissed the application of Sushant Singh Rajput's father, Krishna Kishore Singh. He wanted a restrainment order against anyone using Sushant's name or any likeness to his life in the movies. The plaintiff has failed to satisfy the 3-pronged test for grant of preemptory injunction to restrain exhibition of the films. यानी पिटिशनर ने ये प्रूव नहीं किया कि क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण इसकी परमिशन न दी जाए, ये फिल्म रिलीज ना हो. यानी जो भी लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे थे, आई डोंट नो हु वाज रिप्रेजेंटिंग मिस्टर के सिंह, बट दे कुड नॉट, द लॉयर कुड नॉट कन्विंस द कोर्ट दैट इस इंजंक्शन को देना या रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो उनके इंटरेस्ट को हार्म होगा. शायद ये कन्विंस नहीं कर पाए उनकी जो लीगल टीम है जज को. कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें एक बात और कही, जो फिल्म मेकर्स हैं उनको कहा गया कि जितने भी रेवेन्यू है, जो पैसे की खर्च है, इनकम है इस फिल्म को रिलेटेड, वो सारे का अकाउंट्स आप मेंटेन करेंगे, और उसके बाद अगर कोई डैमेजेस इस फ्यूचर में, मान लो कल फिल्म रिलीज हो गई और परसों किसी हायर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया और कहा कि अब आप डैमेजेस पे करेंगे क्योंकि आपने फिल्म रिलीज कर दिया. मैंने कहा ना, अ सिंगल जज ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इज नॉट द फाइनल ऑर्डर. दैट्स व्हाई आई से दैट, मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को एक ग्लास
हाफ एम्प्टी लग सकता है, लेकिन मुझे वो एक ग्लास हाफ फुल भी तो लग सकता है ना। तो इसलिए कोई भी चीज को आप नेगेटिव तब तक मत मानिए जब तक फाइनल वर्ड नहीं आ जाता है। लेट्स नॉट जज एनीथिंग बाय वन वर्डिक्ट। अगर एक दिन नेगेटिव आ जाता है तो हम सब परेशान, एक दिन पॉजिटिव आ जाता है तो हम सब खुश। ऐसे कभी भी कोई चीजें नहीं होती, खास करके वो मैटर्स जो कोर्ट में हो या लीगल मैटर्स हो। यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू वेट। जब फाइनल वर्डिक्ट आता है उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। इस केस में, इस फिल्म को लेकर मेरे मुताबिक फैमिली स्टिल हैज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। So they said that अगर the judge said in his order that अगर मान लीजिए कल किसी तरह की भी लाइबिलिटी आती है या डैमेजेस पे करना होता है तो आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप पूरे अकाउंट्स मेंटेन कीजिए। जज इज अवेयर इट कैन बी चैलेंज्ड, सो दैट्स व्हाट ही सेड। The court said the producers and directors claimed the films to be fictional rendition of true events surrounding the lives of film TV personalities, including Sushant Singh Rajput, who was reportedly found dead at his home in Mumbai. यानी उनका कहना ये था, जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, कि ये फिक्शन है, ये फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक फिक्शन है, यानी एक कहानी है। हो सकता है आपको लगे उसके नजदीक है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है और हम फिक्शन के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत आदमी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। It doesn't have any relation to a person dead or alive. So it is not related to the life of Sushant Singh Rajput. That's what the lawyers of the producer and director said, and judge seems to have got convinced by that. Now I do not know what the argument of the lawyers for Mr. K.K. Singh made, because it appears from the order कि उनके आर्ग्यूमेंट जो थे वो वीक थे और शायद वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कोर्ट को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गए दैट अगर ये फिल्म रिलीज हो गई कोई हार्म नहीं हो रहा है। अब क्या है फिल्म में ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर फैमिली कह रही थी कि इससे हार्म होगा तो लॉयर्स को ये बात प्रूव करना चाहिए था तरीके से कि हाँ इससे नुकसान होगा और ये नुकसान होगा। विकास सिंह, आप सब जानते हैं विकास सिंह को। सुशांत सिंह राजपूत फैमिली लॉयर हैं, के सिंह को रिप्रेजेंट करते हैं। केवल वही नहीं, उनका और भी लोग हैं। उनके आर्गुमेंट को भी नोट किया कोर्ट ने, और कोर्ट का कहना यह था कि राइट ऑफ फ्री स्पीच in matters of news reporting does not enjoy the same protection when it comes to matters of commercial exploitation. यानी जर्नलिस्टिक राइट, किसी खबर को लाकर आप तक प्रेजेंट करना वो अलग है और उसका कमर्शियल फायदा उठाना अलग है। तो ये फिल्म जो है सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ के बारे में बताकर कमर्शियल फायदा उठा रही है। इसीलिए इस केस को जर्नलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से आप जोड़ के नहीं देख सकते। यानी हम अगर कोई बात कर रहे हैं यहां पर, उसको आप इस फिल्म में जो कुछ भी अटेम्प्ट किया जा रहा है उससे जोड़ के नहीं देख सकते। जर्नलिस्ट विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट बात करते हैं, वो फैक्ट्स प्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है, उनका काम है रिपोर्ट करना। लेकिन फिल्म इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उससे पैसे कमाए जा सके। तो अगर फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है तो फिर उसको जर्नलिस्टिक वर्क से जोड़ा नहीं जा सकता। और इसीलिए ये कहना कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ के सारे फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में है तो फिर क्या एतराज हो सकता है। एतराज ये है अकॉर्डिंग टू विकास सिंह कि न्याय द जस्टिस या और जो फिल्में बन रही हैं वो फाइनेंशियली सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ और डेथ या पूरे इंसिडेंट को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी फाइनेंशियल फायदा उठाने के लिए ये फिल्में बन रही हैं, जबकि जर्नलिस्ट जो है वो अपना काम करते हैं और फैक्ट्स प्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि इसमें फाइनेंशियल फायदा उठने वाला है इसीलिए फैमिली के कंसेंट की जरूरत है। दिस इज व्हाट द लॉयर फॉर मिस्टर के सिंह लेड बाय मिस्टर विकास सिंह सेड। कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा दिस आर्गुमेंट इज मिसकंसीव्ड and one cannot read this classification of core and non-core rights under Article 19(1)(a) of the Constitution, and the protection and guarantee provided by the Constitution would apply with equal rigor even if publication leads to commercial gain. यानी कोर्ट ने कहा कि हम इस आर्गुमेंट को नहीं मानते। अगर मान लीजिए कमर्शियल गेन हो भी रहा है और फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में है तो इट डजंट मैटर। अब ये इंटरप्रिटेशंस को
सीनियर जजेस यानी सीनियर कोर्ट या सीनियर बेंच या हायर बेंच कैसे इंटरप्रेट करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जज ने कहा उनके मुताबिक जो विकास सिंह आर्गुमेंट ले रहे थे वो हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में है तो ऐसे में कोई भी चीज किसी भी हालत में हो, चाहे कमर्शियली फायदा ही उठाने वाली बात हो, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, क्योंकि सारे फैक्ट्स तो पता ही है। तो फिर फिक्शन तो बनाया ही जा सकता है, क्योंकि फैक्ट्स नहीं बना रहा है, क्योंकि फिल्म ये क्लेम नहीं करती है कि ये सुशांत सिंह राजपूत की असली लाइफ है, वो कहती है कि ये नकली लाइफ। मैं आगे कोर्ट ने ऑर्डर में क्या कहा उससे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। विकास प्रोडक्शंस हैं जो शायद इस फिल्म से जुड़े हुए हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, उनका एक कोई ट्वीट है या उनका स्टेटमेंट है जो मैं पढ़ के सुनाता हूं, और अब आप सोचिए और उसको कनेक्ट कीजिए कि क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ से जुड़ा हुआ है या नहीं है। फिर मैं फर्दर ऑर्डर बताऊंगा, क्योंकि ऑर्डर बहुत डिटेल है, बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने नहीं थे, लेकिन अब जो ऑर्डर आया है वो मेरे पास है और उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें। तो विकास प्रोडक्शन ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें लिखा, हम्बल, generous, humanitarian are just some of the words to describe this superstar. Where did it all go wrong? Question mark. Based on true events, the film delves into many unanswered questions which the entire country is waiting to know. Produced by Sarla A. Saraugi and Rahul Sharma, and written and directed by Dilip Gulati, Nyay-The Justice is slated to release on 11th June as a tribute to Sushant Singh Rajput. Starring Zubair Khan and Shreya Shukla in lead roles, the film also stars Aman Verma as ED Chief, Asrani as Mahinder Singh's father. Mahinder Singh is the character in this film, जो सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर का नाम डाला गया है, महेंद्र सिंह है। उनके फादर का रोल असरानी ने निभाया है। शक्ति कपूर एज एनसीबी चीफ, अनंत जोग एज मुंबई पुलिस कमिश्नर, अनवर फतेहन एज बिहार पुलिस कमिश्नर, सोमी खान एज सेलिब्रिटी मैनेजर, अरुण बख्शी एज बॉलीवुड डायरेक्टर, कमाल मलिक एज बॉलीवुड प्रोड्यूसर and Sudha Chandran as CBI director. Now tell me one thing, these are exactly the same characters जो सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में फ्लो इन कर रहे हैं या इस केस में फ्लो इन कर रहे हैं। तो फिर ये मान लेना कि फिल्म फिक्शन है और सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, शायद ये सही नहीं इंटरप्रिटेशन होगा, बट कोर्ट हैज इट्स ओन वे, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन द जजमेंट। सो द जजमेंट देन फर्दर सेड, वन सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। The judgment said that the defendants, have firmly stated that nowhere has the plaintiff or his family or SSR's name, image, persona, likeness, etc. been used by them. The only resemblance to SSR, as defendants have asserted, would be an imaginary dramatization of some of the events that occurred in his life. The artistic freedom to create fictional works cannot be controlled, limited or confined within set boundaries. Now, ये जो ऑर्डर में नोट किया गया है कि जो डिफेंडेंट्स हैं यानी जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनका ये कहना है कि कहीं पर भी न फैमिली, न सुशांत सिंह राजपूत के नाम, इमेज या उनकी पर्सोना या उनके आसपास या उनसे रिजेम्बलेंस, इस तरह की कोई भी चीज यूज नहीं की गई है। केवल एक ही रिजेम्बलेंस है और वो है इमेजिनरी ड्रामेटाइजेशन ऑफ सम ऑफ द इवेंट्स। हमने ड्रामेटाइज किया है कुछ इवेंट्स को जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए हो सकते हैं, और ये हमारी आर्टिस्टिक फ्रीडम के कारण है, क्योंकि हमारा आर्टिस्टिक फ्रीडम हमें राइट देता है टू क्रिएट फिक्शनल वर्क एंड इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, लिमिटेड और कन्फाइंड विद इन सेट बाउंड्रीज, यानी सेट बाउंड्री के भीतर आप उसको नहीं रख सकते। An artist's inspiration can come from, ये जजमेंट में फर्दर लिखा हुआ है, an artist's inspiration can come from any source and the court cannot filter real life events. This court finds merit in the submission of the defendants that details of the demise of SSR received widespread and protracted news coverage in all media which are available in public domain and form a part of public record. The court said in the 42-page
जजमेंट, यानी कोर्ट के मुताबिक जो सबमिशन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने दिया वो उसमें मेरिट मानते हैं, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स हैं वो मीडिया ने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी, और जब सारी चीजें बता दी और पब्लिक डोमेन में है तो फिर प्राइवेसी का क्वेश्चन कहां से आता है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने 1 साल तक इस केस के बारे में बात किया, अलग अलग मीडिया जर्नलिस्ट ने, मैंने, बाकी लोगों ने बात किया, और हमने अपने जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को आपके सामने लाकर रखा, तो वो हमने इसलिए नहीं किया कि हम सुशांत सिंह राजपूत के प्राइवेट लाइफ में आ रहे थे, हमने वो किया जो शायद फैक्ट्स सामने आ रहे थे। जैसे मैं क्लियरली बता दूं, फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग एज ए जर्नलिस्ट, फर्क क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की 34 साल की लाइफ थी, 34 years. Now listen to this carefully. In 34 years, maybe there were a lot of incidents that would have happened. Lot of incidents. हमने सिर्फ उन इंसिडेंट का जिक्र किया, एटलीस्ट जहां तक मेरी बात है, या बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे जर्नलिस्टों ने, केवल मैं उन यूट्यूबर्स या उन इंडिपेंडेंट लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ भी लाकर परोस रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, और मीडिया हाउसेस की और चैनल्स की और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं। जर्नलिस्ट ने उन चीजों को पिक किया जिसका रेफरेंस कहीं ना कहीं से आया। जैसे किसी का रेफरेंस इंट्रोगेशन से आया, किसी का रेफरेंस किसी के स्टेटमेंट से आया, किसी का रेफरेंस मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट से आया, किसी का रेफरेंस सीबीआई के स्टेटमेंट से आया, किसी का रेफरेंस ईडी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस तरह के रेफरेंस से आया, बिहार पुलिस के रेफरेंस से आया। जिसका रेफरेंस आता गया हमने उसकी बात की, जिसका रेफरेंस नहीं आया we did not touch upon that. Like, for an example, Sushant Singh Rajput's mother, what was the history? What was his relationship? Whether with his mother or father, we never touched upon it. क्यों? क्योंकि वो उसकी जाती जिंदगी में जाने वाली बात होती, हम लोग नहीं गए। एटलीस्ट आई डिड नॉट गो। मैंने खुद से कभी नहीं झांकने की कोशिश की कि उसकी जाती जिंदगी में क्या हो रहा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो किया, और शायद मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्टों ने यही किया होगा कि जो चीजों का रेफरेंस आया, जब दीपिका पादुकोण का रेफरेंस आया तो उसके बारे में बात हुई, जब श्रद्धा कपूर का रेफरेंस आया उसके बारे में बात हुई, जब सारा अली खान का रेफरेंस आया तब उसके बारे में बात हुई, जब जिसका रेफरेंस आता गया, जब करण जौहर की बात हुई, उस पार्टी की बात हुई, तब उसका जिक्र किया गया, जब जिसका रेफरेंस आता गया उसका जिक्र किया गया। पब्लिक जो हल्ला करती है, पब्लिक जो बोलती है, गवर्नमेंट जो बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो बोलते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उसका जिक्र किया गया। लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं कह दी गई जो कहीं से भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, शुरू से मैं कहता रहा, मेरे लिए मनोहर कहानियां बनाना पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगा, फिक्शन पॉसिबल नहीं। आज आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों कहता हूं। इसलिए क्योंकि एक जर्नलिस्ट के काम में और एक फिल्म बनाने वाले काम में फर्क होता है। हम सिर्फ फैक्ट्स को लेकर बात करते हैं, वो फिक्शन को लेकर बात करते हैं। अब फर्क ये है कि जब फैक्ट्स कहते हैं तो हम क्लियरली कहते हैं कि ये फैक्ट है और हम इस पर बात कर रहे हैं। ये लोग फैक्ट को फिक्शन में बदलते हैं और उसके बाद कन्विंस कर देते हैं कि ये फैक्ट नहीं है, ये फिक्शन है, और वो ऐसा ही हो रहा है। जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ के सुनाया आपको इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के तरफ से जो आया था, वो क्लियरली कहता है कि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पे बन रही है। लेकिन हाई कोर्ट में जाके उन्होंने कहा ये फिक्शन है, हम सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ के आसपास भी नहीं जा रहे हैं। ना हम फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, ना सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं, ना उसके लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम उसके पर्सोना के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम उसके आसपास हो रही चीजों के बारे में डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या है? दिस इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन अ जर्नलिस्ट एंड अ फिल्म प्रोड्यूसर। Film producer will twist it to suit his commercial interest, and that's exactly what the lawyers for Mr. K.K. Singh said. But maybe the argument was not as strong as it should have been, or high court convinced नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि ये order आ गया। Anyway, let's carry on with what it says further, and then I'll come and say what next, and then ऐसा क्यों मैं कहता हूं कि ये negative नहीं है। The court grants pre-publication injunctions only in exceptional circumstances, and this reluctance is rooted in the importance attached to the right of free speech, and blanket injunctions or gag orders should be avoided unless extremely imperative. यानी अगर हम किसी को स्टे देते हैं तो वो हम एक्सट्रीमली रेयर केस में देते हैं, जहां पर हमें
पता हो कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है और ऐसे में अगर इस फिल्म को नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गैग करना, रोकना, ये हमारा इंटेंशन नहीं होता है, तभी करते हैं हम जब एक्सेप्शनल केस सर्कमस्टांसेस हो। यानी सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस फिल्म को लेकर, यानी न्याय को लेकर और 4 और फिल्म जो आने वाली हैं उसको लेकर हाईकोर्ट को नहीं लगा कि ये कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है। Since the defendants' films are neither portrayed as a biopic, please listen to this. तो आपको स्टेटमेंट मैंने पढ़ के पहले सुना है जानबूझ के, so that you know. Since the defendants' films यानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स फिल्म्स are neither portrayed as a biopic यानी सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पर नहीं बनी हुई है, nor a factual narration of what transpired in the life of SSR and are depicted to be complete fictional and inspired from certain events which have occurred in the past and have been widely discussed and are available in public domain, the court finds no reason to grant a restraining order. Makers of movie Nyay-The Justice have also inserted a disclaimer to the film. यानी क्योंकि ये सारी चीजें हैं, बायोपिक नहीं है ये फिल्म, सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पे नहीं बनी हुई है, इसका फैक्चुअल सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ से फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये कंप्लीट फिक्शन है और जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं इन द पास्ट उससे इंस्पायर्ड है, इसीलिए हम इसको रोक नहीं सकते। और साथ में फिल्म ने के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने एक डिस्क्लेमर भी डाल दिया कि इस फिल्म का सुशांत सिंह राजपूत या किसी भी जीवित या मृत किसी भी शख्स से कोई लेना देना नहीं है। Someone dead or alive, the person doesn't have any links with this movie. This movie doesn't talk about anyone who is either dead or alive because this is an art of fiction. This is what the disclaimer is. Court said that prima facie does not find any element to hold that the film would lead the public to believe that it is a true story or a biopic that has been authorized by Rajput's father. यानी कोर्ट को नहीं लगा कि पब्लिक इस बात पर यकीन कर लेगी कि ये फिल्म जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक है या इसको मिस्टर के सिंह ने ऑथराइज किया है। पब्लिक, I don't know, I don't want to comment on the judgment because that's not our job and we are not supposed to comment on the on judgment per se, but I do not agree on the fact that कोई भी फिल्म अगर आएगी, मैं फिल्म पे तो कमेंट कर ही सकता हूँ, और फिल्म जब कोई आती है ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि पब्लिक उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगी या उसकी बात नहीं मानेगी। कल ये फिल्म आई और एक कहानी प्रेजेंट की, हो सकता है कुछ पार्ट से कुछ पब्लिक, नॉट सब, सारे नहीं, बट कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई ना कोई मान सकता है कि ये सच है, कोई बिलीव कर सकता है कि शायद फैमिली ने अप्रूवल दिया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। तो ये गारंटी देना एक फिल्म के रिलीज के बाद बहुत मुश्किल है कि कोई इसको नहीं माने। Okay, the court found merit in the contention of the defendants that plaintiff action, that is KK Singh's action, is belated, यानी लेट है, उन्होंने टाइम पर नहीं एक्शन लिया, उन्होंने टाइम पर ये चैलेंज नहीं किया। As Rajput, यानी सुशांत सिंह राजपूत, passed away on June 14 last year, and news on his death was widely circulated in the media, and production of the film was announced in August 2020, and the suit has been filed close to the movie's release after substantial time, money and effort have been expended by the makers on production and promotion. यानी सिंपल वर्ड्स में हाई कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं उनका ये ग्राउंड था कि हमने ये फिल्म को अनाउंस किया अगस्त 2020 में, और मिस्टर के सिंह के पास वक्त था अगस्त 2020 से लेकर अब तक इसको चैलेंज करने का, लेकिन मिस्टर के सिंह ने फिल्म के रिलीज होने के करीब आकर इसको चैलेंज किया। इतना सारा पैसा इस फिल्म को बनाने में लग गया है, इतना एफर्ट लग गया है, इतना टाइम लग गया है, जब ये सारी फिल्म तैयार हो गई है तब वो आकर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इनका एक्शन जो है वो लेट है और शायद वेल थॉट ऑफ नहीं है, क्योंकि ये फिल्म जब अगस्त में बननी स्टार्ट हुई थी और अनाउंस हुई थी, उनको उसी वक्त चैलेंज कर देना चाहिए। मुझे जहां तक याद है, इफ आई रिमेंबर इट राइट, जब ये फिल्म पहली बार अनाउंस की गई थी, मिस्टर विकास सिंह ने आके बाकायदा स्टेटमेंट दिया था दैट वी हैव अ प्रॉब्लम विद दिस एंड वी डू नॉट एग्री विद इट, सो ऑब्जेक्शन वाज सर्टेनली मेड बाय मिस्टर विकास सिंह, दिस आई रिमेंबर क्लियरली।
अब उन्होंने उसके बाद क्या लीगल एक्शन लिया ये तो मिस्टर विकास सिंह ही केवल जानते हैं, और अगर लिया था और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो हाईकोर्ट को ये बात उन्होंने क्यों नहीं बताई, या हाईकोर्ट में उन्होंने क्या कहा, ये आई एम नॉट श्योर, बट हाईकोर्ट क्लियरली उनकी बातों से कन्विंस नहीं हुआ और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बात मान ली, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर। The court said it does not find merit in the plaintiff। बहुत सारे रीजंस दिए हैं, बहुत सारे रीजन देके इसको डिसमिस किया गया है, और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि इसमें सारे ग्राउंड, ज्यादातर ग्राउंड जो है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के मान लिए गए हैं, क्योंकि शायद अगेन आई विल से कोई भी जज, कोई भी कोर्ट तभी ऑर्डर देता है जब जो कन्विंस कर ले उसको। दो लोग होते हैं, एक वो जो डिफेंड करते हैं और एक वो जो केस फाइल करते हैं, और दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रांगली कन्विंस कर देता है कोर्ट को विथ फैक्ट्स और स्टेटमेंट, वो कोर्ट मान लेती है, जज मान लेता है। शायद इस केस में ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो हैं उनके आर्गुमेंट या उनके लॉयर्स के आर्गुमेंट ज्यादा इफेक्टिव थे, और इसलिए कोर्ट शायद उससे इन्फ्लुएंस हो गया, और इसीलिए ये ऑर्डर आया क्योंकि कोर्ट वाज कन्विंस्ड कि उनके आर्गुमेंट में दम है। So the court said that it does not find merit in the plaintiff's contention, that is Mr. K.K. Singh's contention, to restrain on the strength of his right to fair trial relating to the unnatural death of his son, saying no foundation is set up to demonstrate how the film would impair the trial। यानी के सिंह ने कहा था कि अगर ये फिल्म बन गई तो फिर उनका केस, क्योंकि अभी चल रहा है और अलग अलग स्टेजेस में, कहीं कोर्ट में है, कहीं इन्वेस्टिगेशन में, उसको ये इम्पैक्ट करेगा। कोर्ट ने कहा आप प्रूव नहीं कर पाए कि कैसे इम्पैक्ट करेगा, और ये फिल्म आकर कैसे सब कुछ बदल जाएगा, कि they could not prove it। In fact, the accused persons who are named in the FIR or are being investigated have not come forward claiming prejudice। यानी इस फिल्म के बनने से वो लोग जो जिनका इस केस में नाम आ रहा है, उनमें से कोई भी नहीं आया कि ये फिल्म अगर बन गई तो हमारे इज्जत का हमारा इज्जत हम बदनाम हो जाएंगे और हमारे इमेज पे इसका रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसका नाम इस केस में आ रहा है, तो फिर केवल आप ही ऐसा अप्रीहेंशन क्यों रखते हैं? While it needs no emphasis that the right to fair trial is a valuable right, however, it must be remembered that the investigative agencies and judicial system do not rely on cinematographic films for the purpose of investigation or judicial pronouncement। यानी कोर्ट का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कोई भी कोर्ट किसी फिल्म में क्या प्रेजेंट किया गया फैक्ट, उसको हकीकत नहीं मानती। हकीकत वो मानती है जो एविडेंस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज प्रोड्यूस करते हैं, जो पुलिस लाके देती है, उसको बेस बनाया जाता है, जो स्टेटमेंट लोग देते हैं उस पर बनाया जाता है, जो अलग अलग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको बेस मानती है। तो कोई फिल्म बन भी गई तो उससे हम इन्फ्लुएंस होने वाले नहीं है, यानी कोर्ट इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी इन्फ्लुएंस होने वाली नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और कोर्ट्स एक साइड ऑफ द वन साइड ऑफ द पिक्चर है, द अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन इफेक्ट होता है और उस पर फर्क पड़ता है। हो सकता है एजेंसीज इफेक्टेड नहीं हो रही हैं, हो सकता है कोर्ट्स इंपैक्टेड नहीं हो रहे, लेकिन पब्लिक इंपैक्टेड हो सकती है। While they have to proceed to decide the issues before them by drawing their own inferences and conclusions based on the materials placed before them in accordance with the law. The court termed as misconceived plaintiff's plea that the content of the films are defamatory and will damage his and his son's reputation। यानी ये बात कहना के सिंह का कि ये जो फिल्म बन रही है और इसमें जो भी फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाएंगे वो डेफेमेटरी होगा और मेरे बेटे के इमेज को, रेपुटेशन को ये खराब करेगा, टार्निश करेगा। कोर्ट ने कहा ये मिसकंसीव्ड है, यानी ये आर्गुमेंट भी कोर्ट ने डिसमिस किया। मुझे इतना ही जजमेंट है, और मुझे इस जजमेंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि इस जजमेंट में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, एक भी पॉइंट जो कि मिस्टर के सिंह के फेवर में गया हो। यानी विकास सिंह और उनकी जो टीम ऑफ लॉयर्स ने जो भी आर्गुमेंट किया, कोर्ट ने एक भी आर्गुमेंट नहीं माना। ये ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है क्योंकि मैंने कोर्ट हियरिंग देखी है और सालों तक सुना है, कवर किया है, प्रेजेंट किया है। ऐसा नहीं होता है आमतौर पर जजमेंट में कि एक वन साइडेड चला जाए कोई जजमेंट। ये तभी होता है जब आर्गुमेंट बहुत वीक हो या फिर कोई और रीजन हो, लेकिन यहां पर अगर हम ये माने कि आर्गुमेंट वीक है तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है कि
एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म बना रहा है जो खुद डिक्लेयर कर रहा है, मैंने स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया, वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पे बन रहा है, और न्याय और द जस्टिस के बारे में आप कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए कि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पर बन रही है। इस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ के आपको सुनाया, उस स्टेटमेंट का जिक्र इस ऑर्डर में कहीं नहीं है। क्यों? क्या लॉयर्स ने, मिस्टर के सिंह के लॉयर्स ने इस स्टेटमेंट को पढ़ के नहीं सुनाया कि दिस इज व्हाट द प्रोड्यूसर्स हैव डिक्लेयर्ड और अनाउंस्ड और सेड? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंटेंशन बताता है कि आपका इंटेंशन क्या है। और ये स्टेटमेंट जो प्रोड्यूसर्स का है वो क्लियर है, वो चाहते हैं लोग इस फिल्म को देखें क्योंकि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पे बनी है। तब ये बात क्या इतने ही वर्ड में क्या के सिंह के लॉयर्स ने हाई कोर्ट में कही कि ये वो स्टेटमेंट है जिसमें प्रोड्यूसर्स खुद क्लेम कर रहे हैं कि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पे बनी है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो जजमेंट लिखा उसमें कहा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा है कि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पे नहीं बन रही है, इसका सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज एन आर्ट ऑफ फिक्शन। और हम डिस्क्लेमर भी डाल रहे हैं दैट इट हैज नो रिलेशन टू एनी पर्सन अलाइव और डेड, यानी सुशांत से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ ये हाई कोर्ट का ऑर्डर और एक तरफ ये स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट क्लियरली कहता है दैट दिस मूवी इज मेड ऑन द लाइफ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड द सर्कमस्टांसेस अराउंड हिम, तो फिर ये बात उनके लॉयर ने हाई कोर्ट में कही या नहीं कही? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और वो कम से कम अगर कही होती तो इस ऑर्डर में नोट किया गया होता, लेकिन शायद इस ऑर्डर में नहीं है। या फिर अगर ग्राउंड्स या जो फैक्ट ऑफ द मैटर है या जो इनिशियल नोटिंग्स है उसमें कहा भी गया हो, तो जो ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन है यानी जिसको कंसीडर किया हाई कोर्ट ने, उसमें वो नहीं आया। दैट मींस आपने उसको स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं किया। एंड नाउ दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ बिग फेलियर। अब अगर ये सब कुछ है, आई ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू टू स्पीक। जो लोग कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर के थ्रू, मैं शेयर कर देता हूं लिंक, सो दैट ऑल ऑफ यू हैव द लिंक। आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर मोबाइल से भी कनेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज डू कनेक्ट। This is the link that you need to, one second, let me just share the link and then I will move forward. So I will share the link. Hopefully both at YouTube and Facebook you will be able to access it. This is the link, and all those who want to connect can connect clearly without any problem via laptop or computer. You can also try using your iPad or a mobile phone. If it works, great. So please try. मोबाइल से ज्योति प्लीज ट्राई। बट मैं जो कह रहा था, लेट्स नॉट चेंज द फ्लो एंड नॉट डिस्टर्ब द फ्लो। मैं ये कह रहा था कि अब जबकि इस ऑर्डर में सब कुछ मिस्टर के सिंह के अगेंस्ट में गया, लेट्स एडमिट दैट कि इस ऑर्डर में न्याय, केवल न्याय को लेकर, बाकी फैक्ट्स अलग है, सबको मर्ज नहीं करना चाहिए और एक ऑर्डर को सब एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं समझना चाहिए। अगर मान लीजिए इस ऑर्डर में न्याय के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स या जो बाकी 4 फिल्में जिसका मैंने जिक्र किया उनके फेवर में ऑर्डर चला गया है, तो अब क्या? लेट्स डिस्कस दैट। अब क्या हो सकता है? तो अब ये हो सकता है, हाई कोर्ट में जो सिस्टम है उसके मुताबिक आप अगर कोई पिटीशन फाइल करते हैं इस तरह का, तो वो सिंगल जज, यानी जैसे मैंने कहा ना ये ऑर्डर सिंगल जज का है, तो सिंगल जज के पास प्लेस होता है। और सिंगल जज डॉक्टर जस्टिस संजीव निरोला के सामने प्रेजेंट हुआ था हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन्होंने जो ऑर्डर दिया है, अब इसको 2 जगह, इसको सीधा आप हाई कोर्ट में बिफोर अ डिवीजन बेंच इज 2 जज बेंच। अब ये सिंगल जज है यानी एक जज है, अब डिवीजन बेंच के सामने इसको तुरंत चैलेंज कर सकते हैं। तो फैमिली हैज अ राइट टू चैलेंज सेइंग दैट द सिंगल बेंच हैज अर्ड, यानी सिंगल बेंच से गलती हुई है इस तरह के ऑर्डर को पास करने में, क्योंकि हमारे फैक्ट्स को कंसीडर नहीं किया कोर्ट ने। आप इसको करेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर ये करेक्ट नहीं हुआ हमें नुकसान हो जाएगा। तो मिस्टर और विकास सिंह इज अवेयर ऑफ ऑल द प्रोसेस। तो फैमिली या लॉयर जो उनके हैं या मिस्टर के सिंह ये कर सकते हैं दैट दे कैन चैलेंज इट बिफोर अ हायर बेंच विच इज अ डिवीजन बेंच इन द हाई कोर्ट। दैट स्टेज नंबर 1। क्योंकि फिल्म 5 है, एक नहीं है। अगर ये फिल्म रिलीज भी हो गई तो कल परसों में 4 दिन बाद ऑर्डर आ जाएगा तो रुक भी सकती है, और बाकी वाले आज आने वाली फिल्म जो है वो भी रोकी जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि ये डिवीजन बेंच के सामने जा सकते हैं। अगर मान लीजिए डिवीजन बेंच में भी आपको फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिला, हाइपोथेटिकली वहां पर भी आपकी बात नहीं मानेगी, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
तो फिर दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. जिस तरह के कमेंट्स आते हैं ना कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेट्स नॉट मेक कमेंट्स लाइक दैट कृतिका कि पैसा ले लिया. वी शुड नॉट से, वी शुड जस्ट स्टिक टू द पॉइंट. हमारे पास इतने इसी वक्त बहुत सारे पॉइंट हैं टू डिस्कस इट. सो व्हाई स्टार्ट प्रिज्यूमिंग कि क्या होगा. आपके पास ऑप्शंस हैं, लेट्स फोकस ऑन द ऑप्शंस. आप अभी डिवीजन बेंच के सामने जा सकते हैं. सहेली हैज जॉइंड. थैंक यू सहेली फॉर कनेक्टिंग. आई जस्ट टेक यू ऑन एयर इन अ सेकंड. तो आप डिवीजन बेंच में इसको चैलेंज कर सकते हैं, और अगर वहां पर भी आपकी बात नहीं बनी तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जाकर वहां भी चैलेंज कर सकते हैं. तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है. नंबर 1. नंबर 2, नेगेटिव किसी चीज को नहीं सोचना चाहिए. उसका रीजन ये है, आप सबकी एक आदत है, और मैं जानता हूं आप सब लोग बहुत इमोशनल हैं, सुशांत से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं. छोटी सी चीज आती है, आप लोग सोचते हो अब सक्सेस मिलने वाला है, अब कुछ हो जाएगा. सिद्धार्थ पिठानी अरेस्ट हो जाता है, आप सब एक्साइटेड हो जाते हैं. लेकिन सिद्धार्थ पिठानी अरेस्ट हुआ है तो सिद्धार्थ पिठानी को बेल भी मिले, बिकॉज वो लॉ में है. तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो. जिस दिन उसको बेल मिलेगा आप लोगों ने सब एवरीथिंग इज गॉन डाउन, ऐसा नहीं होता है. लेट्स बी वेरी वेरी सेंसिबल, अंडरस्टैंड द सिस्टम. अगर किसी को अरेस्ट किया गया है और आपको लगता है वो विक्ट्री है, तो आप उसको विक्ट्री मत मानिए, आप उसको प्रोसेस मानिए कि ये प्रोसेस है, एंड मे बी इट इज अ पॉजिटिव नोट. बट जिस दिन उसको कोर्ट बेल दे रहा है, वो भी प्रोसेस है, क्योंकि बेल कैन नॉट बी डिनाइड. बेल कैन नॉट बिकम एन एक्सेप्शन, इट हैज टू बी अ रूल. क्योंकि कोई इनोसेंट आदमी अगर फंस गया तो कोर्ट उसको भी बेल नहीं देगा. इसलिए इंडियन लॉ क्लियरली सेज बेल इज अ राइट ऑफ एन अंडर ट्रायल. बेल इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट्स अ रूल. आपको बेल देना ही पड़ेगा. आप ज्यादा दिन किसी को बगैर ट्राई किए, बगैर पनिशमेंट दिए जेल में नहीं रख सकते. दैट्स द रूल. तो कुछ चीजें प्रोसेस का पार्ट है. सही, दिस इज समथिंग व्हिच पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. आप एक शख्स अरेस्ट हो जाएगा तो वो जिंदगी भर जेल में नहीं रह सकता, क्योंकि उसको जेल में नहीं रखा जा सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर जाएगा. तो देयर इज अ लॉ, देयर इज अ रूल. पुलिस मैनुअल है, जेल मैनुअल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी के प्रोविजंस है, और ये सारी चीजें मिलाकर सिस्टम तैयार होता है. और वो सिस्टम बेल का राइट एक अंडर ट्रायल या किसी भी शख्स को देता है. इसीलिए मिलता है बेल, और कोर्ट देती है. आप उसको लेकर परेशान मत होइए कि बेल मिल गया तो बहुत बड़ी बात है. साथ ही रिया चक्रवर्ती हो या भारती सिंह हो, जब वो बेल पे छूटते हैं और विक्ट्री साइन दिखाते हैं, तो उनको भी समझ लेना चाहिए कोई विक्ट्री साइन वगैरह कुछ नहीं. सिद्धार्थ पिठानी तो घूम रहे थे ना. सिद्धार्थ पिठानी वाज एंजॉयिंग लाइफ एंड ही वाज गेटिंग प्रिपेयरिंग फॉर हिज मैरिज. एंगेजमेंट हो ही गया था सहेली, बट सडनली गॉट अरेस्टेड. उसके लिए भी तो बड़ा लाइफ वाज ऑल कूल ना, सडनली समथिंग हैपेंड. इसी तरह आपके लिए भी है. प्लीज टेक इट एज अ प्रोसेस सो दैट आपको शॉक नहीं लगेगा. यस सहेली, गो अहेड. Yeah, so okay, coming back to the point, right, today's judgment. So I actually have a link in YouTube where this movie's trailer is there, released like posted by Vikas Production, Yes, and they Vikas clearly Production are the say, producers. yeah, so they clearly says it's a tribute to Sushant Singh Rajput. Whatever you just mentioned in that Statement. court statement, right, and whatever they have said, I will read the statement again so that then you can elaborate. Vikas Production says, humble, generous, humanitarian are just some of the words to describe the superstar. Where did it all go wrong? There's no ambiguity. It's very clear. Based on true events, the film delves into many unanswered questions which the entire country is waiting to know. Produced by Sarla A. Saraugi and Rahul Sharma and written and directed by Dilip Gulati, Nyay-The Justice is slated to release on 11th June as a tribute to Sushant Singh Rajput, starring Zubair Khan and Shreya Shukla in lead roles. The film also stars Aman Verma as ED chief, Asrani as Mahinder Singh's father, that is Sushant Singh Rajput's character name is Mahinder Singh, Shakti Kapoor as NCB chief, Anant Jog as celebrity manager, as Mumbai Police Commissioner, Anwar Fatehan as Bihar Police Commissioner, Somi Khan as celebrity manager, Arun Bakshi as Bollywood director, Kamal Malik as Bollywood producer, and Sudha Chandran as CBI chief. Where is the doubt? There's no doubt, Sahili.
Yeah, so it's, I mean, everything whatever there it is mentioned by Vikas production itself, it's clearly states it's on Sushant Singh Rajput. I mean, whether it's biopic or on a certain matter, but I don't know, right? Like, if someone wants to make a film on my late grandfather, I mean, my family should have the right to have that. Fully So endorse. I feel that the family is being victimized over here because it's the clear right um, of the family that how they want to deal with a story or a film. एंड दैट्स द रीजन Coming शैली, back, दैट्स द रीजन वो जो मैंने कहा ना कि ये लाइन उसमें जो है पोस्टमस प्राइवेसी राइट इज नॉट परमिसिबल, मुझे नहीं लगता कि दिस इज अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू not at all. I don't feel so. Yeah. किसी के I मरने mean, के बाद उसकी प्राइवेसी का राइट नहीं है, दिस इज नॉट अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन। ये पीटीआई की के लाइंस हैं जो पीटीआई ने कोर्ट ऑर्डर से कोट किया है, और मैंने जो ऑर्डर्स पढ़े हैं उसमें मुझे लाइन नहीं दिखा, लेकिन ये लाइन पीटीआई ने बाकायदा कोर्ट में डाला है। Posthumous privacy right is not permissible, the High Court said in its interim order on a plea by Rajput's father to restrain such films. So it's clearly being presented by PTI as part of the order. So posthumous privacy right 100% permissible है। ऐसे तो किसी के मरने के बाद आप absolutely. कुछ भी लिख दोगे उसके बारे में। मुझे लगता है आज भी अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कोई फिल्म बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द मेकर्स go and take the permission from the family, right? That's true. I agree. So why not Sushant? He was a citizen of India. He was a respected citizen of India. So why it's different? So that's the one point. What I was thinking, right, like the other point in the court judgment, that the other parties, right, whoever named in the accused, they didn't come and objected. Why they should come? I mean, family cares most about their family member. Uh, who knows, right, what is there in the film and what is their stake, and so family objected. I mean, it's up to them, they come or not come, but family already did, and family has the most right. So I That's do right. not get that point as well. That's right. That's uh, right. No, Saili, tell me one thing. ये तो एक फिल्म है, अभी 4 फिल्में और भी पेंडिंग है, अभी 4 फिल्में और आने वाली है। अभी अगर मान लीजिए ये ऑर्डर चैलेंज नहीं किया, बिकॉज मेरे हिसाब से तो ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए आइदर इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वेयर एवर द प्रोविजंस आर। अकॉर्डिंग टू मी हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। अगर ये ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ तो फिर तो कोई भी सुशांत पे फिल्म बनाने शुरू कर दे। या और वही करेगा तो एग्जैक्टली, बिकॉज बॉलीवुड तो बैठा ही है कि स्टोरी देने के लिए कुछ भी, right. तो वही होगा। और मतलब पर्सपेक्टिव तो बनता ही है, इवन दो राइट लाइक द फैमिली हैवंट गिवन द राइट, कुछ भी लिख जाए पेपर में, क्योंकि आजकल पेपर में या जर्नलिज्म में कुछ भी लिख देते हैं। सो पीपल टेक अ पर्सपेक्टिव, राइट? लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल that in Bengali newspaper, someday it was written that if you take the COVID vaccine, you will get HIV. So my father called me and asked me, does that really happen? So you get the perspective. So if Bengali newspaper says that, so people should, I mean, have that perspective. So I mean, when I go to see a movie, right? Okay, let me come to that point, journalism and production, right? So in journalism, you give us the fact, you might have some opinion, but at the end it is always open ended, right? You give the fact and it's up to the audience that how they want to take the fact, and Correct. based on that they build their own opinion. Correct. But in movie, right, if it is not a documentary, it starts to aim a goal, right, like have a conclusive ending, right? So a movie is always have a conclusive ending, and after the end of the movie, right, if I watch any movie, I come up with the thought line of the movie, what the production, I mean, what they want to present. Most of the time, 80% of the time, I am kind of convinced with what is presented to me, right? And why not to the audience of the India? I mean, even though if they say, right, like it's not on Sushant, it's all fiction. But if you say, right, like Krishna ke haath mein chakra tha na, so if you're creating a movie with some person,
जिसके हाथ में चक्र है, and you say it's a fictionary character, who will say that it's not Krishna? No. That cannot be the argument. मुझे लगता है, what I'm surprised, Sahili, is that अगर ये statement जो कि प्रोडक्शन हाउस ने डाला है, ये स्टेटमेंट के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के फादर के लॉयर के सिंह के लॉयर्स ने हाईकोर्ट को बताया या नहीं बताया, बिकॉज ये स्टेटमेंट बहुत क्लियरली बताता है दैट दिस इज ऑन सुशांत सिंह राजपूत लाइफ. No confusion. Right. Because it appears from the order, it appears from the judgment that the court was not told about anything where the court could have got convinced. कोर्ट को ये लगा हो कि ये फिल्म जो है सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में बन रही है. यानी एक ही आर्ग्यूमेंट पे इस पूरा ये जजमेंट दिया है, सिर्फ और एक आर्ग्यूमेंट पे हाई कोर्ट ने, जो बेसिक समझ में आता है मुझे, वो ये कि द लॉयर्स फॉर द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स प्रूव्ड टू द कोर्ट कि हम ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत पे नहीं बना रहे. एंड मिस्टर विकास सिंह और एनी अदर लॉयर ऑफ मिस्टर के सिंह फेल टू प्रूव कि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पर ही बन रही. This is the basic argument where it appears to be all messed up. Right, like they are saying that, but again in their statement, as you read, right, they are saying it's a tribute to Sushant Singh Rajput. They're taking the name actually. That's exactly the point. When I do not get that. It's totally contradictory. They are giving that. I mean, I don't know whether they have heard or whatever hearing happened. I am not sure about that. But even though I go by the statement, it's totally contradictory that they are saying it's a tribute to Sushant Singh Rajput, and then again they are saying that it's not in about High Court. They have life. Gone and said something else. I agree. Yes, Poonam, please go ahead. Yes, I'm surprised that High Court में Mr. Vikas Singh जी की तरफ से ये pleading क्यों नहीं गई that these people have already admitted that this is a tribute to Sushant Singh. So if it's a tribute to him, then obviously it is based on him. Yes, and it could have a negative impact, it could have a positive impact, and until the decision is done, until the case is sorted out, I don't think they should do it. I don't know why they missed out this point. Did they miss out this point on purpose, that we want to go towards a multi-judge bench, we don't want to be heard by these people, or I don't know? Because usually if you go to the court, you know that आपका decision पॉजिटिव भी हो सकता है जज की तरफ से और नेगेटिव भी हो सकता है. सो व्हेन फॉर नेगेटिविटी यू आर ऑलवेज रेडी कि अगर ये नेगेटिव हुआ, अगर ये हमारी फेवर में नहीं आया, तो द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज फाइल फॉर द अपील और गो टू डिविजनल कोर्ट. तो उसके डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार होते हैं. नाउ व्हाट हैज हैपेंड हियर इज दैट अगर वो जा रहे हैं कल और कल ही रिलीज है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन. And this is like encouraging someone, आज ये न्याय है, कल अन्याय बनेगा, कल कुछ और बनेगा, 4 फिल्में और बनी हुई हैं. The most surprising part for me is कि अगर ये already मीडिया में है कि इन लोगों ने कहा है कि ये सुशांत सिंह राजपूत पर की ट्रिब्यूट है, then why did the court not consider that statement? I'm actually surprised and not sure if the lawyers have said, whether the lawyers have said, first of all, we don't know whether the lawyers actually said it. If they have said, then that should have been there in the judgment, which is not the case. No, but उनकी पहले पिटिशन में होगा तभी तो जज कंसिडर करेंगे ना. अगर वो विकास सिंह जी की प्लीडिंग्स में ही नहीं होगा, इस ऑर्डर से ऐसा लगता है कि उसमें नहीं है, तो फिर ये होना चाहिए था. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है. हाउ कैन यू बेस योर प्लीडिंग्स ऑन समथिंग फिक्टिशियस? इट इज वेरी सिंपल. इट्स ओनली ऑन वन लाइन. क्या ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ पे बन रही है या नहीं बन रही? दैट्स ऑल. एग्जैक्टली. और वो पहले ही वो कह चुकी है उसकी ट्रिब्यूट है, तो फिर इसका मतलब उसी पे बन रही है. और अगर उन्होंने ये नहीं दिया है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं दिया है, और अगर दिया है तो जजमेंट में क्यों नहीं है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन. क्योंकि वो पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, जिस पॉइंट्स पे आपने कुछ लिखा है उसी पॉइंट का डिसीजन. बट पूनम, व्हाट पॉइंट इज पूनम की, क्या अगर मान लीजिए है नहीं है, एक मिनट के लिए छोड़ दें, अगर मान लीजिए आ भी गया ऑर्डर, तो जब आपके पास ऑप्शन है कि इसका करेक्शन हो सकता है, आई एम श्योर विकास सिंह एंड द लॉयर्स मस्ट बी ऑलरेडी प्लानिंग टू डू दैट. तो फिर
लोग ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि अब ये बहुत नेगेटिव हो गया, ये बहुत शॉकिंग हो गया? बिकॉज मीतू सिंह, मैं मीतू सिंह का स्टेटमेंट बता दूं, बिकॉज फैमिली इज इक्वली शॉक्ड. इट्स नॉट जस्ट द फैंस, इट्स फैमिली इज इक्वली शॉक्ड. Neetu Singh has said, I will just read out what exactly she said in her statement. She says it's extremely disheartening to see the order of the High Court. She says extremely disheartened by the judgment. Hashtag justice for Sushant Singh Rajput. Hashtag SSRians. Hashtag Sushant Singh Rajput. This is what she tweeted after the Delhi High Court order. Just about 6 days before Sushant's death anniversary. कई बार सर ऐसे होता है, हम कई बार ना अपने आप को भी नहीं समझ लो, कोर्ट की प्रोसेस को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं. Rinku, I've seen you. Just stay on. I'll just connect you. Dilraj is also there, but I can't see her. Dilraj is connected, but I can't see her. Yes. So कई बार हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि हमें पता है कि इतना पॉपुलर केस हो चुका है, इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है, इसके अगेंस्ट कोई जाएगा नहीं, कौन जज करेगा, तो वी जस्ट गो विद द फ्लो. हम ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं और या अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं. ईदर वे यू कैन टेक इट. तो उस वजह से भी हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि नहीं, जजमेंट हमारी फेवर में जाएगी, वी विल बी एबल टू मैनेज इट, कोई बात नहीं, चला. No, ये कोई जो है ना, ये I don't think anyone expects ये जजमेंट हमारे फेवर में जाए. अनफॉर्चुनेट है, लोग डिसअपॉइंटेड. आई कैन अंडरस्टैंड, फैमिली इज डिसअपॉइंटेड. मीतू सिंह इज डिसअपॉइंटेड. उन्होंने नहीं सोचा होगा ना, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये हमारी फेवर में नहीं जाएगी, बट चली गई. सो कई बार लिटिगेशन में ऐसी चीजें हो जाती हैं, और हमारी जो भारत की, हिंदुस्तान की जनता है, हम लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं. पकड़ा गया तो पार्टी मनाएंगे, रिलीज हो गया. Kritika Soni is saying small defeats can lead to bigger defeats, but small victory can also lead to bigger victory. Why are you focusing on small defeats? Why don't you focus on small victories? You also get victories. And this is not, again I'm repeating, this is not the end of the world. अभी आपके पास ऑप्शंस हैं. It's not even a defeat. It's just one decision. एक जज ने दिया है, अभी तो मल्टी जजेस की बेंच है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है. There's so much. ये बहुत लंबी लड़ाई है. It's not even a defeat. I don't call it a defeat. ऐसा तो चल देगा. लिटिगेशन करनी है तो you should be ready for everything. नहीं तो मत करो. I agree. Yes, Rinku, please go ahead. Good evening, sir. Am I audible? Yes, you are. Okay. I am really concerned about your health. I don't know. I always miss your, participating in this, but your, presentation is marvelous. At times, what I wanted to add to this here is at time I feel that you know everything and you're just ditching us. The way you narrate us, I feel that everything is known to you, and the only thing is you are also with them and you are saying, okay, चलो मैं सच्चाई के तो लेके आऊंगा ही सामने, लेकिन सच्चाई को पूरी तरह से आने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि लोग कितने जागरूक हैं, और ये बहुत अच्छा एक है. और मुझे आपका जो I just present the fact the way I understand, और जो फैक्ट सामने आते हैं मुझे समझ में आता है, बोलता हूँ मैं. मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ भी. I agree. But your narration is fabulous. You explain so well. Yeah. It's Thank you so much. It touches us, huh? Sir, whatever you said right now today about this, and whatever the decision came here, I have few things to add to this. Here is that what I have noted is that 5 movies have been made, and it means 5 movies must be having some 5 different stories, isn't it? Means the truth is not there, and they are going to. यानी 5 फिल्में बनने वाली हैं या बन रही हैं, और 5 फिल्मों की कहानियां अलग होगी, और ये एक तरह का और एक डिलेमा क्रिएट करेगा, और एक ये बहुत ही गलत आपका इम्पैक्ट होगा दिस. और एक भी कोई चीज अगर वो, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये फिक्शन है मीन्स देयर इज सम ग्राउंड. फिक्शन मीन्स that is made on some ground. Fiction is not something like we are making a story on aliens. Aliens also have a ground. We also say that this is aliens exist, but we have some grounds. So you cannot deny that you have taken some base. And why this base when the family is already against it? Third thing is, time and again I must say that film industry has proved
that the life doesn't matter to them. Anybody's humanity doesn't exist there. They are not say they are. I mean, time and again they have shown they are not heroes. They are not secular people. They are not nationalist people, and they have only one thing is they want money by hook or crook. They want money. The money matters the most for them because if they have some humanity, if they have some kind of pain for their own people of their fraternity, they would have waited for the, they would have rather fought. उन्होंने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने कभी लड़ाई नहीं करी, कभी कुछ नहीं किया, और उसके बाद जैसे आज हम टीवी डिबेट्स में देखते हैं कि बोलते हैं गिद्ध राजनीति, तो ये गिद्ध फिल्म इंडस्ट्री है, पैसों के लिए गिद्ध है। ये किसके लिए पैसा कमा रहे हो? कोरोना ने सबको अपनी औकात दिखा दी है, लेकिन फिर भी ये गिद्ध हैं और रियल में गिद्ध हैं, और ये पैसों के लिए बहुत नीचे गिरते हैं। इनके लिए लाइफ सुशांत की कैसी मौत हुई होगी, ये बहुत ही एक ट्रैजिक मौत हुई है। वो एक इतना ऑनेस्ट आदमी था, इतना ऑनेस्ट लड़का था, इतना ऑनेस्ट बच्चा था, उसने, उसके लिए आपने जो किया है ना, उसने उसकी जो आप जो बार बार पोएटिक जस्टिस कहते हैं, he was a God's child and he has shown that you have come to the ground, still you are after money and they have done this. Sir, fourth thing that why I say that what they are doing, that they are showing that अगर उन्होंने ये बात कही, सर एक चीज में ये कृतिका ने एक सवाल पूछा है, सर व्हाट यू हैव टू से अबाउट मिस्टर राउत स्टेटमेंट। मिस्टर राउत और उनका स्टेटमेंट, इसको कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। कृतिका एक हमारे यहाँ पे एक बात बोलते हैं, गिर रहा है, एक बोलते हैं तूफान बीजेपी पे गिर रहा है। अब वो कभी बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा खराब आदमी नहीं है, फिर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द बिगेस्ट लीडर एंड बीजेपी इज द बिगेस्ट पार्टी। एक बार जाते हैं फडणवीस से मिल लेते हैं, अगले दिन बोलते हैं कि चाय पे बातचीत होगी तो कुछ तो पॉलिटिकल डिस्कशन हो गई, बाद में कहते हैं फडणवीस साहब से तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, किसी काम की बात ही नहीं हुई, वो तो सबसे बड़े दुश्मन है महाराष्ट्र के। बीजेपी कभी अगले 100 साल तक सरकार नहीं बना पाई। अरे भाई, मिस्टर राउत और उनके स्टेटमेंट उन्हीं को मुबारक हो। मैं तो समझ रहा हूँ जलेबी सीधी हो सकती है, लेकिन मिस्टर राउत कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो सकती है, लेकिन मैं वो एग्जांपल डेरोगेटरी मानता हूँ, इसलिए मैं नहीं दूंगा। मैं जलेबी की बात करूंगा, जलेबी सीधी की जा सकती है, मिस्टर राउत के स्टेटमेंट को नहीं किया। नहीं, वो मैं मिस्टर राउत के लिए नहीं बोल सकती। Too intelligent for us to understand, or he's too simple to not understand a lot of. सर, आपकी बात से मैं एक चीज जोड़ना जरूर चाहूंगी। ये लोग जो है बोलते हैं, सपोज करो मैं एक पार्टी में हूँ, कोई भी पार्टी हो, पार्टी का मेरा निशान चाहे गुलाब हो, चाहे मेरे पार्टी का निशान मेरा मोबाइल हो, व्हाटएवर इट इज, जो भी हो, ये बोलते हैं आप मेरी बातों से सहमत हो जाओ और मेरे साथ आओ, इसके लिए लड़ाई करते हैं। अरे आपकी वाइफ तो अलग पार्टी में है, एक तो ये देखते हैं, दूसरी बात है आपको टिकट नहीं मिलता है, तुरंत आप बदल जाते हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां ना रिंकू, सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं मेरी सुनो, मेरी सुनो, तुम्हारी बीवी नहीं कहती, सभी पॉलिटिकल पार्टी कहती है। बीजेपी कहती है मेरी सुनो, कांग्रेस बोलती है मेरी सुनो, शिवसेना बोलती है मेरी सुनो। हम किसकी सुने भाई? हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। हमारी कोई नहीं सुनता सर, कोई नहीं सुनता। हमारी ना बीजेपी सुन रही है। वो बोला ना, वो एडल्ट्रेशन का मैंने एक पोस्ट डाला है, एडल्ट्रेशन ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल के एडल्ट्रेशन के अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया लास्ट ईयर। उससे पहले जो स्टॉक था वो ऑर्डर पास होते ही रेट बढ़ गए। अभी तक नया प्रोडक्शन नहीं हुआ, नया स्टॉक नहीं आया, आपने ऑर्डर पहले ही बढ़ा दिया रेट। तो यानी पुराने स्टॉक को हम नए प्राइस पे खरीद रहे हैं। यार लूटना है तो सीधा बोल दो यार पैसे चाहिए हमको, हम ऐसे ही दे देते हैं। ये छुपा छुपा के क्यों लूट रहे हो यार? कोई भी सरकार हो, पब्लिक को मत लूटो ना। ये सर हम लोग उनके लिए घास है, घास हमें वो चरते हैं, हमें वो काटते हैं, हमें वो चारा में डालते हैं, हम तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते। सर एक बात बताइए, एक आदमी की वाइफ, आप सर आप बोलते हो रिंकू मेरी बात सुनो, मैंने ये नरेशन दिया, आई एग्री विथ यू। आपकी वाइफ कहती मैं नहीं एग्री करती, मैं ठीक उल्टा ही बोल रही हूँ। तो इसका मतलब है जब भैया आपकी वाइफ ही नहीं सुन रही तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक आता है मैंने ये दल बनाया है और बीवी जो है कांग्रेस में जाके बैठी है। एक होता है बेटा जो है कांग्रेस में है, माँ जो है बीजेपी में। ये तो भाई इनकी बातों में नहीं जाना चाहिए। और इनकी बातों से तो रिंकू फैक्ट ये है, अगर एडिबल ऑयल के केस में कोई पैसा बना रहा था ओल्ड स्टॉक पे भी, तो न्याय इसलिए बन रही है ताकि लोगों को लगता है कि न्याय से उनके साथ फाइनेंशियल न्याय हो। ये इसलिए मैं पूछता हूँ कि न्याय हो क्या है? ये न्याय ओनली मोटो
सर और मैं दो तीन पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगी इसमें। एक तो she is saying that she is not able to connect even via laptop. Please check the speed of your Wi-Fi. If your Wi-Fi is having a good speed, it will certainly connect. If it is weak, then maybe use your mobile data or hotspot to connect. You will be able to connect. Laptop or mobile or computer से connect करने में कोई problem नहीं. Yes, go ahead. सर एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, एक अभी रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम में ही पिछले कुछ महीने पहले एक मूवी आई थी, काठियावाड़ मूवी आई थी। एक फैमिली के मदर की स्टोरी थी, हु वाज अ लेडी डॉन, और उनकी फैमिली ने भी मना किया था कि नहीं, ये फिल्म नहीं बननी चाहिए, इससे हमारी रेपुटेशन पे और हमारी जो एक सोशल स्टेटस है उसमें फर्क पड़ेगा। क्या इन फिल्म इंडस्ट्री को फर्क पड़ा? And was that a very good topic that you had taken? There are so many topics, there are so many good things which is happening around, but these people are only after money, sensational news लेके आते हैं और वैसी चीजें लेके आते हैं जिसमें एक बहुत लो प्रोफाइल की मूवीज लेकर आते हैं और उसमें पैसे बनाते हैं। सर इनके लिए सिर्फ पैसा ही मैटर करता है। इसके बाद एक बात और है, क्या उन्होंने उस समय उनकी बात सुनी थी? उस फैमिली की बात नहीं सुनी। और एक बहुत टॉप की एक्ट्रेस वो आकर के उस फिल्म में काम करती है। She also didn't move out. अभी एक खबर इनको और आ रही है, आज किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया and it is being discussed. So since we are here discussing, let's discuss. I thought I will discuss tomorrow, but let's discuss that also. ये रिया चक्रवर्ती को महाभारत में द्रौपदी का रोल ऑफर हो गया क्या? I don't know. Sir, जो बातें जबान पे आई है ना, someone posted and they were saying that she has been offered the Draupadi's role. अरे महाभारत के प्रोड्यूसर को कोई जाके समझाओ भाई, ऐसा मत करो, पैसे बनाने हैं तो न्याय की तरह काम करो, पैसे बनाने हैं तो फिल्म को बनाओ, रिलीज करो। ये द्रौपदी में अगर रिया चक्रवर्ती को ले लोगे तो महाभारत तो ऐसे पिट जाएगी। पैसा कहाँ दूर की बात है, फिल्म कोई देखेगा ही नहीं। महाभारत तो उन्हें महाभारत रहने दो, मत करो ऐसा। lot of anger against her. Please be logical, understand what people are trying to say. Please be mindful कि लोग क्या चाहते हैं। वो वक्त चला गया कि आप लोगों को इग्नोर करेंगे और वो करते रहेंगे जो आप करना चाहते हैं। प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज लोगों का सेंटिमेंट जो है उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, एक चीज है कि अब No, it is a news. It was in. वो अपनी publicity के लिए कर रहे हैं. I don't think any sensible person, no matter how much you're in favor of Riya, would not jeopardize their project. But Poonam, I don't think that is a real news. True news नहीं है मेरे हिसाब से. Must be fake. Someone has planted it. Okay, agreed to you, sir. Both of you, sir, and Poonam, both of you, I'm agreed to that. But don't you think there was a news that she is one of the, best among best? She is one of the top most liked persons. That she was. No. I will tell you about the list. The top list you are talking about, the 50 most happening women. Desirable. मैं थोड़ा clear कर दूँ उसको. Please do not view it. वो list बोलता है that among the top 50 is Sushant Singh Rajput among men. Yes. और women में it says Riya Chakravarti. दोनों का basic difference please समझ जाइए. पहला difference ये है कि Sushant Singh Rajput इसलिए top list में नहीं है because Sushant Singh Rajput has done something. Sushant Singh Rajput name has been talked about the most because of few people, and that's why he's on the top. In good sense. Riya Chakravarti has been talked maximum about you people by you people, and that's why she's on the top of the list. But in negative sense, this is the negative. Yeah. But that was not made clear. Star हो गई है और रिया चक्रवर्ती के बारे में कोई फिल्म आ गई है और लोग वैसा नहीं है. It's about the way you talk. क्योंकि सबसे ज्यादा बात ही हुई है सुशांत सिंह और राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो वो टॉप पे बैठे हैं. Agreed. लेकिन सर लेकिन उस मैसेज में ये कहीं कि that is one second रिंकू, क्या? अच्छा, Saheli is asking. One second, Saheli, I'll put you on screen. Okay. Saheli is asking. It does happen through voting. Yes. No, I don't think so. I don't think so. No, I don't think so. It doesn't happen through voting. Because I think, right, like people were asking in Twitter to vote for Sushant Singh Rajput. Lot of people from our group also were doing so. So I think that's happened through voting.
I'll have to check. I doubt. Because जो मैंने पढ़ा आज that's जब लिस्ट को मैं पढ़ रहा था और उसमें जो फैक्ट्स मैंने देखे हैं, I was told that it's based on the internet response of a name, not on voting. So, okay. It could have also it been was- voting. I don't know. Maybe people could have voted for Sushant, but it is based on the internet response of a person in a year. And Right. that way, Okay. Sushant was the most searched and talked about, and Riya Chakraborty was most searched and talked about. The difference is Sushant was talked about in a good sense, Riya Chakraborty was talked in a negative sense. but it was never Okay. made clear So that there is positive or another thing negative. in like web scraping, right? Since I come from that background, so if you do a web scraping, you can do a sentiment analysis also on the names as well, right? Like on a good sense and bad sense. So you can also do a scoring on like positivity and negativity also. So if right, like I see Riya Chakraborty. I mean, if I have to calculate, a lot of good sense will be there for Sushant Singh Rajput, no doubt, right? Like the sensitivity rating. But for Riya Chakraborty, I think there will be mixed, right? Like the people who doesn't know about the real facts or who are actually for her might be looking for. There will be a good. Tag in the internet for her, but there will be also a bad tag with her with the court case and everything, right? So I think it will not, if the system is right, like whoever coded or whatever is so intelligent, then it should have like balanced that thing. Riya Chakraborty should not have been in the top if it is only on the internet search. But it's on, if it's only on search, then No, I not on search. I said the person talked about the name which is most circulated. It's not about search. okay. It's multiple things. Search is a specific word. The person who has been searched the maximum, वो list अलग है, Sahili. That list comes separately, where Prime Minister becomes the number one person, not Sushant Singh Rajput. But this year again, Sushant Singh Rajput was number one. Riya Chakraborty was not the most searched person, but here the most talked about person जिसका reference सबसे ज़्यादा आया. तो सबसे ज़्यादा reference जब भी आया वो रिया का आया. अगर सुशांत टॉप करेगा तो रिया तो टॉप करेंगी. Understood है, बहुत clear है. Okay, I may not agree fully on that, but So that's why I said you we'll are have to saying do a that, little let's bit say, more research to find out exactly the criteria on which she has been selected as number one. But I'm sure that it's not positive, it's negative side because of that she has been selected. Should I say something, sir? Why it says, Ashok Ram is asking, Sunil Ji, why it says desirable? Yeah, I have an objection also on that. Actually it says desirable, but the criteria is something else. That's exactly, I'm also surprised, Ashok, that why it says desirable. Sushant Singh Rajput after his death can be discussed, but he can't be desirable, not because he has to be respected. He is not there. So how can you desire him? At the same time, a person who is being talked most in a negative manner, how can that person be desirable? I have an opinion on that. Yes. So I think you are right. Yes. Yes. Yes, sir, because Go ahead. yeah, it was not made clear that searched or desired in a negative sense or positive sense. It has not been made clear, so that remains very doubtful whether the news is correct or the search is correct, and whatever the things are correct or Nandita not. is saying a different thing. Nandita is saying we know that, but the list was justified through a news article in support of Riya for facing the trial strongly, I guess. I don't think so, Nandita, that it could be that. I will tell you. If I start recollecting what happened after 14th of June, there has been a major change after July, in fact. While on the one hand, there were people, especially from West Bengal, who were supporting Sushant Singh Rajput. And the maximum support came from West Bengal for Sushant Singh Rajput initially, if you remember, because I was covering it. Later on, as the time moved ahead, Sushant Singh Rajput's following in West Bengal, or people talking about Sushant Singh Rajput from West Bengal, went down. That's because a lot of people started talking about the me Bengali feeling, that she's a Bengali girl, she's a Bengali daughter, and that I think worked in her favor. This is what I feel, that the Bengali factor was playing. A lot of people took a sidestep. A lot of people did that. This is why my reading goes. I have seen the profile of the people who were coming on my show, so I can figure that out from the way it changed.
Yes. But sir, till today on Facebook, on YouTube, I have seen that, and on live shows also, I've seen people. Most of the people, those who are supporting Sushant, are from West Bengal only. Till today, it Yes, is the yes. maximum. But It is. but if it is 20% today, it was 5 times of that. If it is 20 today, it was 100 at that. Okay, okay, That maybe. kind of a following. इनफैक्ट अगर मेरा ये मानना है कि अगर बंगाल के लोग नहीं आते ना तो इतने लोग खड़े ही नहीं होते. ये जी बंगाल का बिल्कुल. इतनी सिचुएशन था. बंगाल के लोगों ने खड़ा किया सुशांत सिंह राजपूत के कैंपेन. अगर उन्होंने और नहीं खड़ा किया होता तो ये कैंपेन खड़ा ही नहीं होता. कभी नहीं or खड़ा. or even in Guwahati onwards, people liked and they supported. Not the way Not, Bengalis yes, supported. yes, yes, yes. They And were sir, they were the one who made this campaign what it is. until today it is going on them only. And sir, I mean, not only that, I have seen that when Ria's name was I mean, on some magazines front page, that time also the most of the people who came forward to speak against it were from West Bengal only. Yeah, it was on uh, Shanunda. Yeah, she was like kind of made as like a hero. I will tell yeah. you, whenever, whatever has happened, it is because the voice was maximum from there. Yeah, So yeah. every time they did something, they protested. Even today, Sahili is here, Joy is there, Payal is there, Anandita is there. Everyone, most of the Bengalis are on this platform, and they all support Sushant and oppose Ria. I don't get it why, but they do it. They do it. Yes, And even Myanmar people, speaks the way they are thinking. people from Bangladesh, people from Assam, people from Guwahati, all northeastern people, they have really given a big support to Sushant. And this is what even I see that even people from Bihar, where from he hails, Sushant hails, he didn't get that kind of support what he got from West Bengal. That's right. Sir, yeah, one point which I wanted to, which you gave in your narration, which I wanted to say, आपने पहले शुरू में कहा न्याय, न्याय का मतलब ये होता है कि अगर किसी को न्याय मिलता है वो किसी के लिए अन्याय हो सकता है. कोई अगर जिसे हम सोचते हैं कि वो हमें न्याय मिला, आपने जो अपने नरेशन में शुरू में कहा, तो आपने ऐसे ही कहा कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि वो फिल्म नहीं बननी चाहिए और तो वो आपको आप जैसे फैंस को लगता है कि वो अन्याय हो रहा है, लेकिन वो हो सकता है किसी के लिए न्याय हो. सर, हम सब सनातनी लोग हैं, हम सब हिंदू धर्म के को मानने वाले हैं. हमारे धर्म में भी कहा गया है, आई डोंट नो अबाउट अदर रिलीजन बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू अदर रिलीजन सो वेल, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी सर कि अगर किसी के जान को बचाने के लिए, किसी की जान की रक्षा के लिए अगर झूठ बोला जाए, वो असत्य भी 100 सत्य से बड़ा है. अगर हमें पता है कि उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है और दुनिया कह रही है, दुनिया में हर जानने वाला व्यक्ति अगर कह रहा है, तो उसी की फ्रेटर्निटी के लोग अगर आकर के फिल्म बना करके ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है. बहुत अशोभनीय है. फैक्ट इज कि आपको एक अथॉरिटी का स्टैंप चाहिए होता है, और जब तक वो स्टैंप नहीं लगेगा, हम लोग कुछ भी बोलते रहे, आप कुछ भी बोलते रहे, बाकी जर्नलिस्ट कुछ भी बोलते रहे, लॉयर कुछ भी बोलते रहे, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स होंगे. आपको एक अथॉरिटी का स्टैंप चाहिए कि ये सुसाइड था, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था, या ये मर्डर था. तीनों में से जो भी है उस पर एक अथॉरिटी का स्टैंप चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग टुवर्ड्स सीबीआई ना. सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को और क्यों लोग वेट कर रहे हैं? The judgments, whatever judgments come, judgments are always given a reference. If you give a judgment and if that judgment is taken seriously, I mean, judgments are taken very seriously. In today's, we have the fourth pillar, I mean, judiciary is the fourth pillar, and fifth pillar is the media. And I think media, the media which is coming on national TVs or whatever is, now they have failed. Only we can see right now that our social media and judiciary are doing really well. और अगर ये कोई गलत डिसीजन देते हैं या कोई भी अगर ऐसा ये रास्ता खोलते हैं, तो ये खुद ही फंसेंगे. इन्होंने आज तक जिन 70 सालों में जिन चीजों को ढक के रखा था, उन चीजों को फिर वो खुल जाएगा. Yes, Poonam, go ahead. I just wanted to say this कि yes true, यहाँ पे काफी हमारी जो ये कम्युनिटी है आपकी, ये जो आपका पेज है उसमें मैक्सिमम बंगालीज हैं, एंड आई एम सो प्राउड टू सी दैट, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया है सुशांत के इस कॉज को. एंड मैंने कहा ना पूनम की कैंपेन को खड़ा ही उन्होंने किया. लेट्स नॉट डिबेट इट.
और मैक्सिमम जो वो हुई है ऑन द रोड, जो भी एजिटेशंस, जो भी आप उसको बोल सकते हैं, वो कलकत्ता में ही हुई है। कोलकाता में पुराने नाम से मेरे को फेमिलियर ज्यादा रहता है, तो वो वहां ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू एनी अदर सिटी। And still, yes, Myanmar has their own page, which is 100% dedicated to Sushant Singh Rajput. It's really good to see that, because in spite of the fact that Ria is Bengali, and a lot of Bengali people are taking Sushant's side, and that's how it should be. ये नहीं होना चाहिए कि But हम that's because they are not discussing human beings, or they are not discussing individuals. हाँ They are basically discussing the issue, हाँ isn't it? ऐसा ही Saili? होना That's the चाहिए, reason. हाँ Because on issue, they do not find her correct. They find Sushant Singh Rajput or the people supporting him, or the incident that has happened. They are convinced that something wrong happened with Sushant Singh Rajput. something is And there. that's the issue on which they are supporting. One second. Yes, go ahead. Yeah, I mean, most of the Bengalis doesn't think that Ria resembles anything about a Bengali girl. That's a sentiment, right? Like, it's one thing that something has gone wrong with a very innocent person. That's why they are standing for it. And also, they do not connect anything with Ria. Bengalis do not connect anything with Ria. I mean, I will say that you said that a lot of people, I think it went down to 1/5 when the campaign started. But if you tell me the number, right, like all over, I think it's the same proportion. I think there is a different set of people who supported Ria, and that is also politically No, I'm not motivated. comparing. I'm neither saying it's shifted. But I'm saying if there were 100 people there, today that number is 20 because of the fact that the 80 people who because see, Bengalis very well, Saili, they are so committed, they are so dedicated. उनके दिमाग में अगर कोई बात घुस गई ना, तो वो निकलती नहीं है जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं जाता है। तो वो 80 लोग जिन्होंने छोड़ा, मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने क्यों छोड़ा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। 20 तो आज भी हैं, लेकिन वो 80 क्यों छोड़े? उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई। This was being fed that please at least be neutral. So कुछ लोग इन्फ्लुएंस भी हुए, कुछ लोग नहीं भी हुए, बट बंगालीज के बारे में मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर उनके दिमाग में कोई बात घुस गई ना, फिर वो निकलती नहीं है, फिर वो इंश्योर 204 सीट लेकर जाएंगे। maybe they were thinking that हमें एक बंगाली लड़की को ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए। Things happen, हमें क्या पता क्या Let's हुआ। not debate too much, otherwise controversial हो जाएगा। Let's get back to न्याय। This will do a lot of अन्याय to a lot of people. So let's not get into this. बहुत ज़्यादा sensitive matter हम लोग discuss कर रहे हैं। Let's not debate this too far. Let's get back to न्याय. Let's get back to न्याय। न्याय. I came to your platform the first day. I remember I said कि हम लोग हिंदुस्तानी कब बनेंगे। I still remember that, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा था, क्योंकि उन दिनों में क्या हुआ था, जब सुशांत की जब न्यूज आई थी, तो लाल सिंह चड्ढा नाम की पिक्चर रिलीज होने वाली थी। कहाँ लाल सिंह चड्ढा कहाँ रिलीज होना है? अब तो मैं तब की बात कर रही हूँ सर, जब सुशांत की न्यूज आई थी तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की थी। एंड यहाँ पे इस जगह पर कनाडा में ज्यादातर पंजाबी लोग हैं। दे सेड नहीं हम तो, मैंने उनको बोला कि आप आमिर खान की पिक्चर मत देखना, किसी खान की, कोई बॉलीवुड पिक्चर नहीं हम लाल सिंह चड्ढा तो देखेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन आवर कम्युनिटी। मैंने कहा ऐसे ही तो वो बेवकूफ बनाते हैं आपको, और आप बनते जा रहे हो। व्हाट्स द पॉइंट? मैं आपको बुक ला दूंगी, आपको कुछ और चाहिए वो ला दूंगी, वो देख लो, पर अब वो मूवी नहीं देखनी है। बट nobody was listening at that time. Now हम सिचुएशन इस तरह की आ गई है कि हम लोग इतनी स्ट्रेंथ में आगे बढ़े एक साथ कि अब वो उन्होंने उस प्रोग्राम को तो अब कैंसिल ही कर दिया या पुट ऑफ कर दिया, डब्बे में डाल दिया, जो भी कह सकते हैं उसको। So as for this movie is concerned, I think Mr. Vikas Singh should tell his lawyers to file an appeal or divisional court. और वो करेंगे भी, उनको करनी पड़ेगी। वो नहीं भी करेंगे तभी उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा है इस केस में। They cannot make decision on their own now कि हम करें ना करें। They have to. Anju, we can't say that because it's not always the way the public thinks. It could also be that on a day of hearing,
or argument, the person who should have argued did not argue the correct way. Why should Yes. you take the benefit of doubt to the judge? Why should we blame the judge and say कि the judge नहीं, did judge this को or that? blame. हाँ, Let's not judge. discuss judge. Let's discuss the person who was arguing that. It's a very simple thing. There are two parties discussing this. One is saying this, one is saying this. The judge feels this man has a more weight, and that's why the judgment goes in his favor. It's simple as that. Yeah, usually. I have a question. Did Vikas Singh was there in the argument, or it was I his don't think so. He lawyers was from there. his firm? Obviously, he was there because the judge has noted his name. His Okay. name? Okay. That's surprising, actually. He is Yeah. Okay. Anything else you want to? Either of you No, want to say? Thank you. Thank Yeah, you, sir. Oh yes, Thank yes. you. Saili, go ahead. Saili, go ahead. No, I mean, I also think the same, that they should take it to the next level, right? Like they should plead in higher court, or take the judgment. That's what I also want to say. Okay. Thanks, Saili. Thanks a lot. Thank you. Thanks for joining, being the first to join. The family is extremely disappointed. As I said, Meetu Singh has sent out a tweet saying that कि इससे झटका लगा है. Obviously, it's very disheartening. दुख होता है जब इस तरह का ऑर्डर आ जाता है. बट मेरा कहना है कि चाहे फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैंस हो, कोई डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑप्शंस आपके सामने हैं. यू शुड लुक फॉर ऑप्शंस एंड फाइंड अ सॉल्यूशन. फैमिली और फैंस को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट, रादर देन अरे बाबा ये हो गया अब तो सब खत्म. अब तो सब खत्म मतलब सब खत्म. आपको ही सोचना है कि अब ये हो गया, अब क्या करना है. आप जो कर रहे हो वो करते रहो, चलते रहो राह पे, और आगे अपने आप ही चीजें होती रहेंगी. बिकॉज अगर आप चलेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, तो फिर रुक जाएंगे. सो रुकना नहीं है अंडर एनी सिचुएशन. बिकॉज अगर आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं फैमिली के तौर पे, तो फिर चीजें तो होती रहेंगी. हो सकता है यहाँ पे आपको सेटबैक लगाओ, कल आपको हो सकता है आपके एडवांटेज में जाए चीजें, बट यू नीड टू फाइट. सो फैमिली हो, फैंस हो, फ्रेंड्स हो, माई थिंग इज दैट डोंट जज इट on the basis of success and failure, advantage or disadvantage, positive or negative. Just take it as a process. There is a case which is being fought. There's an investigation which is going on. This process will have negative things. It will have positive. There will be good days and there will be bad days. And it's all part of life that you have some good days and you have some bad days. And that's what it is. So let's conclude this session. We'll come back tomorrow again. Hopefully the system works more perfect. Today, fortunately, because it worked on laptop and computer, we had at least 3 of them joining. Rinku, thank you so much for joining. Sahili, thank you so much for joining. And Poonam, you people saved the day, because of you, a lot of people could interact because you were saying exactly what they wanted to say. I want others also to come join in. Please, if you have a laptop or a desktop, please check whether you are able to connect through BeLive or not through the link that I've shared. So try that out. Maybe it will work. So tomorrow, come back in bigger numbers. We'll discuss something more about Sushant Singh Rajput. Just 5 days, 4 days more for him to complete 1 year. A year where we don't know what happened to him. There are more questions than answers. Sushant Singh Rajput died on 14th June 2020. And on 14th June 2021, it will be 1 year. CBI is investigating the case, but we still don't know how did he die. Was it a suicide, abetment of suicide, or a cold-blooded murder? We'll come back tomorrow to talk something more about the case. Thanks a lot for watching. Stay connected. Good night.